Welcome back to C2C Mentors. My name is Shanky, and today we'll be discussing the set number 4. Set number 4 for CAT 2020 sets that have been asked. Okay, I hope you guys are liking the content. Please show us some support by hitting the like button and also subscribing to the channel. Okay, so let's just jump to the test set without wasting any time. Guys, you can pause the video here and you can just go through the set for once. Take 10 minutes of time, 10 to 12 minutes of time. Try to solve it on your own first. If you're not able to get any gist of the solution, you can watch the solution that we are providing, but first try it on your own. Otherwise, watching these videos is not like a movie show that you will be able to enjoy it until and unless you are putting some of the efforts. You need to put in some of the effort. After that, you will be able to understand the things better, that where you are lagging and where you need to jump from. Okay, so I hope everyone has solved this. Okay, in a certain board examination, students were to appear for the examination in 5 subjects. Okay, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस. क्या बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स को 5 एग्जाम में अपीयर करना था. इंग्लिश था, हिंदी था, मैथ्स था, साइंस था, सोशल साइंस था. ड्यू टू सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशन, a few of the examinations could not be conducted for some students. Obviously कोविड की बात ही करी जा रही है एक तरीके से देखें तो, बट ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. Hence, some students missed one examination and some missed the 2 examinations. कई लोगों ने एक एग्जामिनेशन मिस करा है, कई लोगों ने 2 एग्जामिनेशन मिस किया. Nobody missed more than 2 examinations. That is a very good point कि किसी ने भी 2 से ज़्यादा एग्जाम नहीं मिस किए हैं. This is a point to note. Okay, the board adopted the following policy for awarding marks to the students. ये पॉलिसी का ध्यान रखना, उन्होंने अब यहाँ पे तुम्हें अलर्ट कर दिया है. If a student appeared in all the 5 examinations, then the marks awarded in each of the examinations were on the basis of scores obtained by them in those examinations. क्या बोल रहा है, अगर स्टूडेंट अपीयर हुआ 5 के 5 एग्जामिनेशन में, तो जो स्कोर उसको आना चाहिए था वो स्कोर उसको आ गया, जो स्कोर उसको आना चाहिए था वो स्कोर उसको आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ अ स्टूडेंट मिस्ड ओनली वन एग्जामिनेशन, अगर स्टूडेंट ने कोई भी एक ही एग्जाम मिस किया, then the marks awarded in that examination was the average of the best 3 among the 4 scores if the examinations they appeared for. ठीक है, ये डेटा देखेंगे तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है. इफ अ स्टूडेंट मिस 2 examinations, अगर 2 एग्जामिनेशन मिस कर रहा है, then the marks awarded in each of these examinations was the average of the best 2 among the 3 scores. Okay, तो यहाँ पे है कि अगर एक एग्जाम मिस करूंगा तो जो मेरा फिल इन गैप होगा 4th एग्जाम के लिए, जो मैंने एग्जाम मिस किया है, वो होगा कि जो मैंने 4 एग्जाम दिए हैं उनके अंदर से बेस्ट 3 का स्कोर. क्या होगा? बेस्ट 3 का स्कोर. अगर मैं 2 एग्जाम मिस करता हूं, तो मतलब मैं 3 एग्जाम दे रहा हूं. जो मैं 3 एग्जाम दे रहा हूं उसके अंदर से जो बेस्ट 2 का स्कोर होगा वो ये मेरा फिल इन नंबर होगा. The marks obtained by the 6 students in the examination are given in the table below. Each of them missed either 1 or 2 examination. This is a very important line कि each of them missed either 1 or 2 examination, like there is no person who has done all the 5 exams. ठीक है, चलो let's move on to the table without wasting any time. गाइज देर आर फॉलोइंग फैक्ट्स, और भी हैं. अच्छा ठीक है, और भी इसमें फॉलोइंग फैक्ट्स हैं. तो वो क्या बोल रहा है कि 4 ऑफ दी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ईच ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस. ओके, तो 4 स्टूडेंट हैं जो अपीयर हुए हैं इंग्लिश के एग्जाम में. चलो बातें करते हैं बाद में इसकी, बट ये देखते हैं. गाइज अलवा को अगर मैं देखूं तो अलवा ने 1 या 2 एग्जाम मिस किए होंगे, येस और नो. अलवा ने 1 या 2 एग्जाम मिस किए होंगे, येस या नो. ऐसा नहीं है कोई भी स्टूडेंट जिसने 5 के 5 एग्जाम दिए हैं. ओके, तो एवरेज जो होता है, एवरेज का सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एवरेज हैज टू लाई बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर. एवरेज हैज टू लाई बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, येस और नो. हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर, विच मीन्स कि जो भी पूरी टेबल में हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर हैं, विच मीन्स जो भी पूरे टेबल में हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर हैं, वो एग्जाम तो उन लोगों ने पक्का दिया ही दिया है. अदरवाइज तो वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, अदरवाइज तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे आप कभी भी. जैसे यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट है 80, तो 80 कभी भी किसी भी 2 नंबर का एवरेज या 3 नंबर का एवरेज नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि 80 हाईएस्ट नंबर है. अगर 80 हाईएस्ट नंबर है, दैट मीन्स कि अलवा ने वो एग्जाम दिया ही दिया है, यस और नो.
यस और नो, आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई? तो बेटा अल्वा ने 80 मार्क्स वाला एग्जाम दिया है और 60 मार्क्स वाला एग्जाम दिया है। तो अगर अल्वा ने ये प्रोसेस फॉलो किया तो सबके लिए यही प्रोसेस फॉलो होगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में ही तो रहेगा एवरेज। तो इसने भी भाई साहब ने ये एग्जाम दिया है और ये एग्जाम दिया है। इसने भी क्या किया है, इसने भी ये एग्जाम दिया है और ये एग्जाम दिया है। इसने ये एग्जाम दिया है, इसने ये एग्जाम दिया है, इसने ये एग्जाम दिया है। कहाँ गया भाई इसका हाईएस्ट नंबर? 95। इसका लोएस्ट नंबर 55। इसका हाईएस्ट नंबर 88। इसका लोएस्ट नंबर 72। तो ये सारे मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं। ये सारे एग्जाम्स इन लोगों ने दिए ही दिए हैं विदाउट अ डाउट। ये चीज आप लोगों को पहले समझी, ये चीज आप लोगों को पहले समझी। वो बोल रहा है बेटा 4 ऑफ दीज स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में भी 4 स्टूडेंट अपीयर हुए, हिंदी में भी 4 हुए, साइंस में भी 4 हुए, सोशल साइंस में भी 4 हुए। द स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक एग्जाम्स डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं, ढंग से सोचो एक बार के लिए, कि अगर मैं 80 और 75 का एवरेज निकालने जाऊंगा तो वो क्या आएगा? वो 77.5 आएगा। क्या तुम्हें 77.5 कहीं पे दिख रहा है? नहीं। बट अगर मैं 80 और सुनो 80 और 70 का एवरेज निकालने जाऊंगा, समझो इस चीज को, अगर मैं 80 और 70 का एवरेज निकालने जाऊंगा तो वो 75 आएगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, 80 और 70 का एवरेज निकालने जाओगे तो वो आपको 75 आएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? तो अल्वा के पास बेटा एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि अल्वा ने मैथमेटिक्स का एग्जाम पक्का दिया ही दिया है। अल्वा ने मैथमेटिक्स का एग्जाम पक्का दिया ही दिया है। अब डिपेंड करता है कि अल्वा के पास दो चॉइसेस हैं। अल्वा ने हिंदी का एग्जाम दिया है, हो सकता है दिया हो। अगर हिंदी का एग्जाम उसने दिया होगा तो साइंस का प्लग इन नंबर हो जाएगा। कैसे? टॉप 3 स्कोर्स का एवरेज, टॉप 3 स्कोर्स का एवरेज, ये भी आपका बेटा 75 ही आएगा, ये भी आपका 75 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अल्वा ने साइंस का एग्जाम दिया हो, ठीक है, हिंदी ना दिया हो, साइंस का एग्जाम दिया हो। तो अल्वा के पास दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि 80 70 75 दिया हो। ठीक है, 80 70 75 दिया हो। और तीसरा क्या है कि उसने हिंदी और साइंस दोनों ही ना दिए हो, उसने हिंदी और साइंस दोनों ही ना दिए हो और उसने सिर्फ मैथमेटिक्स दिया हो, उसने सिर्फ मैथमेटिक्स दिया हो, उसने सिर्फ मैथमेटिक्स दिया हो। तो उस केस में क्या होगा? 80 और 70 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तब भी एवरेज 75 आएगा। तो जो दो एग्जाम नहीं देंगे उसका प्लग इन नंबर तब भी 75 आ रहा है। तो जो तीन पॉसिबिलिटी थी वो आप लोगों को समझ में आई, वो आप लोगों को समझ में आई। सिमिलर बेसिस पे बीथी का देखेंगे, बीथी का देखेंगे तो बीथी जो है वो 85 85 ला रहा है। 85 किसका एवरेज होगा बेटा? 85 किसका एवरेज होगा सिमिलर बेसिस पे? 85 बेटा 90 और 80 का एवरेज हो जाएगा, या फिर 85 90 85 और 80 का भी एवरेज हो सकता है। यस और नो? 85 जो है सेम केसेस पे अगर देखें अल्वा वाले केस में तो हमें ये पता चल रहा है कि 80 वाला एग्जाम पक्का हुआ ही हुआ है। बीटी ने 80 वाला एग्जाम पक्का दिया ही दिया है। कैसे? क्योंकि 90 और 80 का एवरेज निकालोगे तो 85 आएगा। अगर उसने दो एग्जाम छोड़े होंगे तो ये वाले दो एग्जाम छोड़े होंगे, करेक्ट? अगर उसने दो एग्जाम छोड़े होंगे तो उसने ये वाले दो एग्जाम छोड़े होंगे। अगर उसने कोई भी एक अटेंड कर लिया तो टॉप 3 के मार्क्स का भी एवरेज 85 ही आएगा, तो वो आपका पंच इन फिगर हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? तो बीठी के लिए भी तीन पॉसिबिलिटी हैं, बीठी के लिए भी तीन पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी ये है कि सर बीठी ने ना तो साइंस का एग्जाम दिया ना सोशल साइंस का एग्जाम दिया, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, सर साइंस का एग्जाम दिया एसएस नहीं दिया, ठीक है, एसएस का एग्जाम दिया साइंस का एग्जाम नहीं दिया। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं आपकी बीठी के लिए, तो इसको याद रखेंगे अपन आगे चलते हुए। ठीक है, ये काम आएगी चीजें अभी आगे जाके। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। 75 और 9, यहाँ पे 75 100, तो यहाँ पे 80 किसका एवरेज हो सकता है? यहाँ पे 100 और 80 का एवरेज 90 हो सकता है। सेम केस हो गया, सेम केस हो गया, तो मतलब 80 वाला एग्जाम ये बंदा भी दे रहा है काल, 80 वाला एग्जाम ये बंदा भी दे रहा है काल। यस और नो? 80 वाला सेम, बाकी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। 80 वाला एग्जाम ये बंदा भी दे रहा है काल। सिमिलर बेसिस पे 100 और 80 यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला एग्जाम ये बंदा दे रहा है। यस और नो? दीप भी दे रहा है। यहाँ पे देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ईशा में, ईशा में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे ऊपर हर एक नंबर रिपीट हो रहा है, 75 75 85 85 90 90 90 90। तो ईशा ने मतलब 4 एग्जाम दिए होंगे। अभी देखो ईशा ने अगर 4 एग्जाम दिए हैं तो टॉप के 3 का उसका जो स्कोर आएगा तो 95 85 80। क्या इसका एवरेज 60 हो सकता है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? 95 85 60, ये कितना हो रहा है देखो, 95 85 60,
5 और 5 10, 10 18 240, 240 डिवाइडेड बाय 3 80। क्या ये प्लग इन नंबर हो गया आपका? क्या ये प्लग इन नंबर हो गया आपका? तो ये एग्जाम इसने नहीं दिया, इसने बाकी चारों एग्जाम दिए, यस और नो? इसने बाकी चारों एग्जाम दिए, यस और नो? इसने बाकी चारों एग्जाम दिए और एक एग्जाम इसने नहीं दिया। सर इसमें आपने वो दो वाला केस क्यों नहीं कंसिडर किया? क्या बेटा यहाँ पे दो सेम नंबर आ रहे हैं? क्या यहाँ पे दो सेम नंबर आ रहे हैं? यस या नो में जवाब दो। क्या यहाँ पे दो सेम नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो यहाँ पे देखो अगले वाले में 88, 88 प्लस 78 का एवरेज निकालूंगा तो 83 आएगा। तो मतलब 78 वाला एग्जाम तो उसने दिया ही दिया है, तो 83 की पॉसिबिलिटी है। देखते हैं बेटा क्या पॉसिबल होता है। हो सकता है उसने इंग्लिश ना दिया, हो सकता है उसने सोशल साइंस ना दिया, और हो सकता है उसने दोनों दोनों ही ना दिए। ठीक है, दोनों ही ना दिए। अब देखते हैं बेटा क्या क्या कंडीशन दे रखी है। द स्टूडेंट हु मिस द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। बेटा सारे लोग मैथ्स का एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, तो कौन नहीं कर रहा है? सिर्फ कार्ल अटेंड नहीं कर रहा है। कार्ल अटेंड नहीं कर रहा है मतलब कार्ल यहाँ पे बैठा हुआ है, यस और नो? यहाँ पे पहली लाइन दे रखी है 4 ऑफ दी स्टूडेंट्स अपियर्ड इन ईच ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन। चार स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी आ गए इंग्लिश के, तो मतलब ये इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहा, यस और नो? ये इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहा, यस और नो? सिमिलर बेसिस पे हिंदी के भी ये दो स्टूडेंट कट जाएंगे, यस और नो? यस और नो? यहाँ पे भी चार आ चुके हैं सोशल साइंस में, सोशल साइंस में भी चार आ चुके हैं। बात रही साइंस की, बात रही साइंस की। साइंस में क्या हो सकता है बेटा? साइंस में अगर ये वाला, ये 85, ये एग्जाम इसने नहीं दिया है, ये एग्जाम इसने नहीं दिया है, तो साइंस की पॉसिबिलिटी क्या है? ये क्या बोल रहा है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु मिस्ड द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन। हिंदी एग्जाम जिसने मिस किया है उसने कोई भी और एग्जाम मिस नहीं किया। द अदर स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन ऑल्सो मिस द साइंस एग्जामिनेशन। हो सकता है बेटा दीप ने हिंदी एग्जाम मिस किया हो, दीप ने हिंदी एग्जाम मिस किया हो, यस और नो? साइंस के लिए भी बेटा चार लोग ही है ना, साइंस के लिए भी बेटा चार लोग हैं जिन्होंने दिया है। 4 ऑफ दी स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक है, 4 ऑफ दी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द, क्या बोल रहा है? अपीयर्ड इन ईच ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन, यस और नो? यस और नो? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? बेटा अगर यहाँ पे मेरे को पता है कि एक साइंस का एग्जाम मिस करने वाला इन दोनों में से एक था और एक हिंदी का अलोन एग्जाम मिस कर रहा है, तो इन दोनों में से एक ने तो एग्जाम दिया, दैट मीन्स इसने तो पक्का मिस किया है। इसने अगर मिस नहीं किया होगा तो यहीं पे चार लोग हो जाएंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, दैट मीन्स इन दोनों को मिस करना पड़ेगा। अगर इन दोनों को मिस करना पड़ गया तो मेरी ये वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। वापस से समझो, एकदम धीरे से समझा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक की टेबल फिल कर ली थी, ठीक है। अभी हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी। अगर बेटा मैं बीठी को एग्जाम दिला देता, ये वाला बीठी ने एग्जाम दे दिया होता, तो साइंस में भी चार स्टूडेंट आ जाते, ये और ये कैंसिल हो जाते। लास्ट कंडीशन दे रखी है, द अदर स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन ऑल्सो मिस द साइंस एग्जामिनेशन। वन ऑफ द स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम। हिंदी के दोनों लोग ही फिर साइंस मिस कर रहे होते, हिंदी के दोनों लोग ही फिर साइंस मिस कर रहे होते। व्हाट डज दैट मीन? कि ये वाला केस वैलिड नहीं है, ये वाला केस वैलिड नहीं है। दैट मीन्स कि बीटी ने मिस किया है साइंस का एग्जाम। अब अलवा और दीप में से, अलवा और दीप में से कोई ना कोई एक पर्सन ने साइंस का एग्जाम दिया है और कोई एक पर्सन ने साइंस का एग्जाम नहीं दिया है। ये चीज आप लोगों को समझ में आई? ये बन गया आपका पूरा टेबल। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Who among the following did not appear for the mathematics examination? बेटा किसने नहीं किया मैथ्स का एग्जाम अटेंड? काल भैया ने नहीं किया, तो काल को आंसर मार्क कर दो, +3 ले लो यहाँ पे। Which students did not appear for the English examination? बेटा इंग्लिश एग्जाम के लिए कौन कौन अपियर नहीं किया है? बेटा ई और एफ अपियर नहीं किए इंग्लिश एग्जाम के लिए। कौन कौन नहीं अपियर किया है? ई और एफ। What best can be concluded about the students who did not appear for the हिंदी एग्जामिनेशन? बेटा एक तो हमें पता है कि हिंदी एग्जाम के लिए कौन कौन अपियर नहीं हो पाया, अलवा और दीप, अलवा और दीप। अलवा और दीप नहीं अपियर हो पाए बेटा, अलवा और दीप नहीं अपियर हो पाए, यस और नो? अलवा और दीप नहीं अपियर हो पाए। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट्स हु मिस द साइंस एग्जामिनेशन? बेटा बीठी तो एक पक्का है ही जिसने साइंस का एग्जाम मिस किया है, और बाकी अलवा या दीप में से कोई एक है, अलवा या दीप में से कोई एक है। हाउ मेनी आउट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट्स मिस्ड एग्जैक्टली वन एग्जामिनेशन? बेटा एक एग्जाम किस किसने मिस किया? देखो आप यहाँ पर से आप बता सकते हो कि एक एग्जाम किस किसने मिस किया। एक एग्जाम ऑब्वियसली, एक तो काल था हमारा, एक तो काल था ही हमारा, एक अलवा या दीप में से कोई होगा, एक हमारा ये बंदा है, यस।
एक हमारा ये बंदा था, यस और नो, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, यस और नो। तो मतलब 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम मिस एक ही किया है, ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं। तो यहाँ पे भी +3 ले जाओ, यहाँ पे भी +3 ले जाओ, यहाँ पे भी +3 ले जाओ, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3। अब टाइम देखो, 15 मिनट 15 मार्क्स, अभी तक चल रहा हूँ उसी फॉर्मेट पे। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी बी डेफिनेट अबाउट विच एग्जामिनेशन दे मिस्ड? बेटा 4 स्टूडेंट्स के लिए तो मैं डेफिनेट हूँ ना कि कौन कौन से उन्होंने मिस किए। 4 स्टूडेंट्स के लिए, अलवा और दीप को छोड़ के मुझे सबके बारे में पता है कि किसने कौन सा एग्जाम मिस किया। तो यहाँ पे भी +3, टाइम 15 मिनट, ठीक है, मार्क्स 18। ऐसे रखोगे बेटा, पक्का बेड़ा पार हो जाएगा LRDI में, 99+ के पास चले जाओगे अगर ये रेशियो मेंटेन करके चलते हो। सिंपल रेशियो है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन, नॉर्मल सा था, बस एक एवरेज का कंसेप्ट अगर आपको आता था देन यू विल सेल थ्रू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। इफ़ यू वांट मोर ऑफ दिस कंटेंट अगर आप लोगों को चाहिए, यू नो टिल नाउ कि अभी आप लोगों को क्या करना है गाइज। एक थम्स अप के बाद सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दिस इज अ फ्री कंटेंट एंड दिस विल बी अवेलेबल if you guys will show a good response. Till then, bye bye, take care, we'll meet you in the other video.